بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو AS ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لائی ہوں اس کا نام ہے اکلوتا اور اسے تحریر کیا ہے نذیر فاطمہ نے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پنجابی کی ایک مشہور کہاوت ہے، کوئی رگ بھی کدی کلا نہ ہوئے، کبھی کوئی اکیلا اور تنہا نہ ہو۔ بالکل سولانے درست۔ میں تو یہ کہتا ہوں کلا پتر یعنی اکلوتا بیٹا بھی کسی کا نہ ہو، خاص طور پر وہ بیٹا جو 7 بیٹیوں سے چھوٹا ہو۔ میں سرمد ہوں، فضل داد کا اکلوتا سپوت، میرے بچپن سے لے کر اب تک، جبکہ میرے دونوں بیٹے بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ بہنوں کے ہاتھوں میری کیسی کیسی درگت بنی ہے مت پوچھیں۔ بچپن میں میرا منہ چوم چوم کر میرے چہرے کا گوشت تک گھسا دیا۔ آج تک میرے چہرے پر ماسک نہیں آیا۔ سارا دن مجھے گود میں اٹھائے پھرتی کہ میرے ساتھ کے لڑکے فٹ بال کے پیچھے بھاگنے لگے تو میں نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا۔ وہ بھی اللہ بھلا کرے میری دادی کا، جنہوں نے رولا مچا کر مجھے ان کی گودوں سے نیچے اتروایا۔ جب تک میں جوان ہوا میری 7 بہنیں شادی شدہ ہو چکی تھیں۔ جب میں نے کمانا شروع کیا تو سمجھو میری بہنوں کی لاٹری نکل آئی۔ وہ اپنی بہت سی ضرورتوں کے لیے میری تنخواہ کا بڑا حصہ لے اڑتی۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ باریاں لگا رکھی تھیں۔ جیسے ہی میری تنخواہ آتی، میری وہ بہن جس کی اس مہینے باری ہوتی اپنے کسی مسئلے کے ساتھ موجود ہوتی۔ کسی کی چھت ٹپکنے لگتی تو کسی کی پانی والی موٹر جل جاتی۔ جس طرح قیام پاکستان سے پہلے پنجاب گورا صاحب کے نزدیک فروٹ گرین باسکٹ آف انڈیا تھا، بالکل اسی طرح میں اپنی بہنوں کے لیے نوٹ باسکٹ آف فضل ہاؤس تھا۔ ابا کو جب ان کی اس کارروائی کا ادراک ہوا تو وہ کمر کس کر میدان میں آ گئے۔ تنخواہ ملتے ہی میری ساری تنخواہ اپنے قبضے میں لے لیتے اور مجھے خرچہ دے کر باقی بچت کے خانے میں ڈال دیتے۔ یہ بات میری بہنوں کو بہت ناگوار گزری۔ اماں، کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابا کی سوتیلی بیٹیاں ہیں۔ کیا تھا جو سرمد ہماری تھوڑی بہت مدد کر دیتا؟ ہم بہنیں ہیں اس کی، حق بنتا ہے ہمارا اس پر۔ بہنوں نے ہاتھ نچا نچا کر اماں سے شکوہ کیا۔ وہ کہتے ہیں شادی کے بعد تم لوگ اپنے شوہروں کی ذمہ داری ہو، باپ اور بھائی کی نہیں۔ تمہارے شوہر جتنا کماتے ہیں تم لوگ اسی میں گزارا کرنا سیکھو۔ ابا تو ہمیں ویسے بھی ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بڑی آپا نے لمحوں میں ابا کی ساری محبتوں کو بھلا دیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کیسے تم لوگوں کو لاڈ اور چاؤ سے رکھا ہوا تھا۔ ہمیشہ انہوں نے تم لوگوں کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھے گھروں میں تم لوگوں کی شادیاں کی۔ برے بھلے وقت میں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مگر تم لوگوں نے تو روز کا تماشا ہی بنا لیا تھا۔ اسی لیے تمہارے ابا نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اماں نے ایمانداری کی انتہا کر دی۔ تو سرمد کے کون سے بچے ہیں جن پر اسے خرچ کرنا ہے؟ چھوٹی آپا بھی تنک کر بولی۔ ابھی نہیں ہے نا، شادی کریں گے تو بچے بھی ہو جائیں گے، بس تم لوگ اس کی کمائی پر نیت نہ لگایا کرو۔ بات بنتی نہ دیکھ کر ساتوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری سب بہنوں کی شادیاں بھرے پورے گھروں میں ہوئی تھیں، جہاں وہی ساس نندوں کی روایتی چپکلش عام تھی۔ جب گھر میں میری شادی کا ذکر شروع ہوا تو ساتوں باری باری آ کر اپنے سسرالیوں کے مظالم سناتے ہوئے یوں روئیں کہ سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ وہ تو ابا کی دھاڑ نے انہیں چپ کروایا، ورنہ تو شاید سارا گاؤں ان کے آنسوؤں میں بہہ جاتا۔ قصہ یہ تھا کہ اب ان سب کی کوئی نہ کوئی نند کنواری تھی اور ہر کوئی یہ چاہتی تھی کہ میری شادی اس کی نند سے ہو تاکہ وہ اس کی نند بن کر گن گن کر بدلے لے سکے اور اپنے سسرالیوں کو ناکو چنے چبوا سکے۔ بہنوں کو روتے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں ساتوں کی نندوں سے شادی کر لوں، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ مگر ایسا میں صرف سوچ ہی سکتا تھا کہ اول تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی اور دوسرے ابا کو ان جنجال پوروں سے لڑکی اپنے گھر نہیں لانی تھی۔ سو میں اور اماں جب آپاؤں کی دلجوئی کرتے کرتے جذباتی ہونے لگتے، ابا میدان میں آ کر ان کو وہ کھری کھری سناتے کہ ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا۔ ان سب کی امیدوں پر 100% پانی اس وقت پھرا جب ابا شہر گئے اور اپنے کزن کی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی بیٹی سے میری بات پکی کرائے۔
अम्मा को तो अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने का अरमान था, सो वो अब्बा की खुशी में शरीक हो गई। आपाओं को खबर हुई तो इकट्ठी आकर यूं रोईं जैसे खुदा न ख्वास्ता किसी की मौत हो गई हो। उनको देखकर फिर जो अब्बा को जलाल आया तो पूरा घर हिल गया। तुम लोग क्या मेरे घर नहुसत फैलाने आ गई हो? मेरे इकलौते पुत्र की शादी तय हुई है और तुम लोगों ने रोना पीटना डाल दिया है। चलो निकलो, शाम तक मुझे तुम में से एक भी यहाँ नजर ना आए। अगर तुम लोग मेरे पुत्र के शगुन में खुशी खुशी शरीक होना चाहो तो मंगनी में आना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इधर का रुख करने की। रखना डालने वालों की मैं टांगे तोड़ दूंगा। अब्बा से कुछ बईद नहीं था, वो वाकई टांगे तोड़कर हाथों में पकड़ा देते। इस धमकी के बाद सब ने अपने आंसू तो पोंछ लिए, लेकिन मेरी बीवी मतलब होने वाली बीवी से दिल ही दिल में बैर बांध लिया और उसे 8 आंसू रुलाने का तहैया कर लिया। मेरी मंगनी से शादी तक उन्होंने मेरी बीवी को तंग करने के जो मंसूबे बनाए, उनमें से एक आध कभी कभार मेरे कानों में पड़ जाता तो मैं हकीकतन परेशान हो जाता कि मुस्तकबिल में क्या होगा। बदला लेने के हवाले से उन्होंने जो फहरिस्त बना रखी थी, उनमें पहले नंबर पर यह था कि वो उसकी बरी के लिए एक से एक घटिया जोड़ा खरीदेंगी। दूसरे नंबर पर उसके जहेज की चीज़ों में रज रज के नुक्स निकालेंगी। मगर वो भूल गई थी कि अब्बा उन सब के बाप हैं। उस वक्त उनको मुंह की खानी पड़ी जब अब्बा ने बरी बनाने की जिम्मेदारी उनको दी ही नहीं। वो शहर जाकर नादिया के हाथ पर पैसे रखाए कि अपनी मर्जी से कपड़े खरीद ले। जहेज के अब्बा वैसे ही बहुत खिलाफ थे। अपनी बेटियों को तो उन्होंने हस्बे हैसियत जहेज दिया था कि जहाँ उनकी बेटियाँ ब्याही गई थीं, वहाँ के लोगों की सोच अब्बा जैसी नहीं थी। मगर अपने बेटे की दफ़ा तो वो अपनी मनमानी कर सकते थे, सो उन्होंने की। घर में अल्लाह के फजल से हर चीज़ मौजूद थी। अब्बा ने मेरे कमरे में नया फर्नीचर, कालीन और पर्दे डलवाकर कमरा शादी तक लॉक कर दिया। ए सरमद, तू तो अभी से हम बहनों को भूल गया है। बीवी के आने के बाद तो हाथ से पकड़कर घर से ही निकाल देगा। मैं दफ्तर से वापस आकर अभी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था जब सहन में बैठी आपा तस्वे बहाने लगी। आपा, मैंने आपको देखा नहीं था। मैं फ़ौरन उनके पास जा बैठा। हाँ, अब तो तेरी आंखों में तेरी होती सोती बसती है, हम तुझे कहाँ नज़र आएंगे। मेरी वजाहत पर उनके दुख में मज़ीद इजाफा हो गया। मज़ीद वजाहतों पर उनके दुख ने 180 की स्पीड पकड़ ली, जिससे ब्रेक अब्बा की खंखार नहीं लगाई। इसी तरह गरम सर्द हालात का सामना करते हुए शादी का दिन आन पहुंचा। मैं बहुत डरा हुआ था। आपाओं के रवैये ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि आइंदा मेरे साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। मेरी बारात जाने लगी तो सातों बाग फड़ाई के बजाय भाग के साथ लटक ही गईं, जिस पर घोड़ी ने बुरा मुंह बनाकर इधर उधर उछलना शुरू कर दिया। घोड़ी के उछलने से डरकर जो भागी तो बाग फड़ाई बाग छुड़ाई में बदली और मैं नीचे गिरने से बाल बाल बचा। खैर, उनके हर नखरे और तकरीबी मंसूबों के बावजूद नादिया रुखसत होकर मेरे साथ आ ही गई। ओ कुड़ियो, अब और कोई रखना ना डालना। नादिया को कमरे में छोड़ कर आओ, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। अब्बा को बहू पर बड़े लाड आ रहे थे। वो सब मुंह बसोर कर उसे कमरे में छोड़ आईं। नादिया बहुत अच्छी लड़की साबित हुई। अब्बा तो वैसे ही उस पर जान छिड़कते थे। अम्मा भी उसके साथ बड़ा घुल मिल कर रहती थी। मगर जब उनकी बेटियां आ जाती तो अम्मा के ऐसे कान भरती कि उनकी बहू की नादीदा ख्वामियां भी नजर आने लगती तो वो तंज का एक आध तीर बरसा ही देती। नादिया ने समझदारी से हालात का तज्जिया करके लाए अमल अपनाया था, लिहाजा जब ऐसी सूरत हाल पेश आती तो वो खामोश हो जाती। बाद में अम्मा को अपने तर्ज अमल पर अफसोस होने लगता कि उन्होंने नाहक ज़्यादती की। अपनी ज़्यादती की तलाफ़ी में वो और मीठी हो जाती और नादिया के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने इस सूरत हाल पर काबू पा लिया। बेटियों की बातें सुन लेती मगर बहू को कुछ ना कहती। कहती भी क्यों, नादिया ने कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया था। हम आ जाएं तो तेरी बीवी की जान निकलने लगती है। 2 बज रहे हैं, अभी तक सब भूखे बैठे हैं, खाने का कोई नामो निशान नहीं है। आपा ने मेरी क्लास ली। ना तुम सब अपने हाथ पैर अपने घरों में छोड़ाती हो जो खुद उठकर कुछ नहीं कर सकती। नादिया की कुछ मदद ही कर दो, बेचारी कब से अकेली लगी हुई है।
नादिया जब से उम्मीद से हुई थी, अब्बा के लाड और बढ़ गए थे। अब भी मेरे बोलने से पहले उनकी झिड़की सुनाई दी तो वो जो चारपाई पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी, यूं उठी जैसे सांप देख लिया हो। अब्बा को घर से बाहर जाते देखकर ही उन्होंने दिल की भड़ास निकालना चाही थी, मगर न जाने वो वापस कैसे आ गए थे। नादिया पुत्र, बस कर अब, ये रोटियां मैं तनूर से ले आया हूँ। अब्बा ने रोटियों वाला लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। देखा अम्मा, अपने शोहर को, तेरे लिए तो तीला तोड़कर दोहराना किया और अब बहू के लिए रोटियां बाजार से ले आए। हमारे होते हुए कभी बाजार की रोटी ना खाई अब्बा ने। मंजली आपा ने अम्मा को भड़काया। तेरे अब्बा के लिए वो रोटी घर पर ही बनाएगी। अम्मा ने कोई खास नोटिस ना लिया। अम्मा तू भी? सब की सब अम्मा के यूं पार्टी बदल लेने पर तड़प गई। हाँ तो वो दूसरे जी से है। सालन और मीठा उसने घर पर बना लिया। अब तुम सातों इकट्ठी हो गई हो। सातों के कुल मिलाकर 21 तो बच्चे हैं। वो कैसे इतनी रोटियां पकाए? खुद तो तुम में से कोई उठकर पानी भी नहीं पीती, मगर हम तो उसका ख्याल करेंगे ना। आखिर को वो हमारे बेटे की औलाद को जन्म देने वाली है। अम्मा की गिनती पर सबसे छोटी आपा भड़क गई। तोबा अम्मा, तू तो गिन गिन कर बताने लगी। अब हम बोझ हो गए। सातों के आंसू पलकों पर आन रुके। सातों एक दूसरे की तरफ देख रही थी कि किसी एक के आंसू गालों पर फिसलें तो उनके आंसू भी आज़ाद हो। तुम बेटियां हो इस घर की, बोझ क्यों? पर धियो, उसका भी तो ख्याल करना चाहिए ना। आखिर वो भी इंसान है। जब तक वो फारिग नहीं हो जाती तुम लोग एक एक करके आया करो। अगर इकट्ठी आओ तो फिर काम मिल मिला कर किया करो। सातों के आंसू बैक वक्त गालों पर फिसले और सिसकियां होंठों की कैद से आज़ाद हो गईं। तुम लोगों को क्या हुआ? अब्बा कमरे में आए। उनको देखकर सातों के बहते आंसू यूं खुश्क हुए जैसे भारत ने डैम बनाकर हमारे दरियाओं को खुश्क कर दिया है। कुछ नहीं अब्बा, ऐसे ही दादी मरहुमा याद आ रही थी। आपा ने बात संभाली। मैं अब्बा की सेहत और उम्र दराजी की दुआ मांगा करता था कि वही थे जो मेरी अथरी बहनों को काबू करते थे। एक दफ़ा मैंने किसी बात पर नादिया की हिमायत की थी, जिस पर सातों ने मेरे इतने कान खींचे कि मुझे यकीन हो गया कि आज या तो मेरे कान अलग होकर उनके हाथों में चले जाएंगे या हाथी की तरह पंखे की सूरत तो ज़रूर ही इख्तियार कर लेंगे। उसके बाद मैंने तौबा की थी कि उनके सामने कभी नादिया की तरफदारी नहीं करूँगा। जब भी मैं अब्बा की गैर मौजूदगी में बहनों के हत्थे चढ़ जाता तो अपनी बीवी के बारे में उनकी लंतरानियाँ चुप साध कर सुनता रहता। कोई बात नहीं, वैसे भी बड़े बड़े कानों वाला सरमद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो कहती और हम दोनों हंस पड़ते। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता कि नादिया आम औरतों की तरह अनापरस्त नहीं थी। वो बहुत समझदार थी। उसे मालूम था अपनी नंदों को कैसे काबू करना है, सो वो कामयाबी से उनके साथ निबाह कर रही थी। तीसरे नंबर वाली आपा को बात का बतंगड़ बनाने में कमाल हासिल था। एक दिन वो घर आई तो अब्बा बरामदे में बिछी चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपने सफ़ेद साफ़े से मुंह ढांप रखा था। उन्होंने सलाम किया तो जवाब नदारत। वो चीख मारकर बैन करने लगी। हाय अब्बा, तू हमें छोड़कर चला गया। हाय देखो, सब अपने अपने मज़ों में हैं। हाय देखो, दोनों मियाँ बीवी दिन दिहाड़े अपने कमरे में घुसकर बैठे हैं और मेरा अब्बा अकेले पड़ा पड़ा मर गया। हाय अब्बा। उन्होंने मुझे और नादिया को यूं लताड़ा जैसे मुल्कुल मौत हम दोनों के पास आया था और हमने उसे अब्बा की जान निकालने की इजाज़त दे दी हो। मैं, नादिया और अम्मा भाग कर बरामदे में आए। हमारा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इससे पहले कि सूरत हाल को समझते हाय अब्बा करके रोती हुई आपा के मुंह से हाय अम्मा की ज़ोरदार आवाज़ निकली। अब्बा की लाठी दूर से उनके बाजू पर पड़ी थी और तकलीफ़ की वजह से उनका राग यानी बैन बदल गया था। क्या मिजाल है कि 2 घड़ी आराम कर ले बंदा। मैं सो रहा था, मरा नहीं था, अब्बा ने कड़े तेवरों से कहा। हाय अब्बा, सो रहे थे तो बता नहीं सकते थे। ले के मेरे इतने आंसू ज़ाया करवा दिए। उन्होंने बाजू सहलाया। गो उन्हें अब्बा के ज़िंदा होने की खुशी से ज़्यादा अपने आंसुओं के ज़ाया होने का गम हुआ था ना। अब मैं क्या अपने सरहाने बैनर लगवा लूँ कि मैं सो रहा हूँ, मरा नहीं। हद होती है बेवकूफ़ी की। अब्बा उठ खड़े हुए। हमारे यहाँ पहले बेटे की विलादत हुई तो अब्बा खुशी से अल्लाह के हजूर झुक गए।
मिठाई बांटी। मेरे बेटे की 7 फूफियाँ एक एक माशे की सोने की अंगूठियाँ लाईं और बदले में आधे आधे तोले की झुमकों की फरमाइश कर दी। अब्बा तो सुनते ही भड़क उठे, तुम लोग अपनी लाई हुई मुंदरियाँ वापस ले जाओ, हम लोगों के पास 2-2.5 लाख रुपए कहाँ से आए। अब्बा ने लगी लपटी रखे बगैर कहा, मगर अम्मा इस दफ़ा बेटियों के साथ थी, भरी पूरी ससुराल में रहती हैं, भाई के बेटे की विदाई तो बनती है ना। आधे तोले की ना सही, कुछ हल्का फुल्का ही सही, पर सोने की चीज़ इन लोगों का हक बनती है। सो मरते क्या ना करते, जैसे तैसे पूरा किया गया। जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो बड़ी आपा ने एक नया शोशा छोड़ा। वे सरमद, जिस तरह अम्मा के घर पहले 7 बेटियां पैदा हुई थीं, फिर बेटा, तो मुझे लगता है इसी तरह तेरे घर पहले 7 बेटे होंगे, फिर बेटी, इसलिए बच्चों में ज़्यादा वक्फा ना रखना। ये सुनकर नादिया सच में बेहोश हो गई। आपा की बात से डर कर जो उसने फुल स्टॉप लगाया तो नंदों के तानों और अम्मा की नसीहतों के बावजूद बच्चे 2 ही अच्छे की पॉलिसी पर कारबंद रही और हमेशा की तरह अब्बा की सपोर्ट तो उसे हासिल थी ही। मैं इसी तरह अपनी बहनों से दुर्गत बनवाता रहा और मेरे बेटे मूसा और हारून अपने तालीमी मदारज तय करते रहे। जब मेरे दोनों बेटे आगे पीछे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए तो मेरी आपाएं जो मेरी दुर्गत बनाते वक्त पक्की इत्तेहादी होती थीं, उनमें फूट पड़ना शुरू हो गई थी। वजह थी मेरे बेटे। जी, आप ठीक समझे। मेरी हर बहन ये चाहती थी कि मैं अपने बेटों के लिए उसकी बेटी लूं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी सब बहनें मुझसे बड़ी हैं, तो उनकी बेटियां मेरे बेटों की हम उम्र कैसे हो गईं? तो इत्तलान अर्ज़ है कि मेरी हर आपा के बच्चों की तादाद 7 से 8 अदद है, लिहाजा उनके आखिरी 2 बच्चे मेरे बेटों के हम उम्र या उनसे थोड़े छोटे थे। लिहाजा अब हर किसी की ये कोशिश थी कि वो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो जाए। इस चक्कर में वो एक दूसरी की वो बुराइयां करती कि मैं गुंग हो जाता। वो सब शायद ये बात भूल गई थी कि हमारे अब्बा अभी ज़िंदा हैं, जिन्होंने कभी मेरे साथ ज़्यादती नहीं होने दी, तो मेरे बेटों के साथ भला कैसे होने देंगे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मैं अपने बेटों के लिए सबसे पहले अपनी भांजियों के बारे में ही सोचता। आखिर बहनों का भाइयों पर बहुत हक होता है। मगर बात दरअसल ये थी कि उन सब की बेटियां एक से बढ़कर एक शोखियां और ज़बान दराज थीं। रो पीट कर मैट्रिक FA किया और समझो तालीम मुकम्मल। बाकी का सारा वक्त घरेलू सियासतों और चुगलखोरी में गुजरता। मेरी आपाओं का कहना था कि उनकी बेटियां अपनी चंडाल फूफियों पर गई हैं और उनकी नंदों के ख्याल में पूरी की पूरी अपनी अम्माओं पर पड़ी थीं। ऐसे मौके पर मेरी बहनों की नंदें पंजाबी की ये कहावत बावाज़े बुलंद दोहराती थीं, कनक दा बी ते माँ उत्ते ती, यानी जैसी माँ वैसी बेटी। शुक्र है रब ताला का कि मेरे बेटे मुझ पर नहीं बल्कि अपने दादा पर पड़े थे। मामला फ़हम और न डर। जब मेरी बहनों का तकाजा हद से बढ़ने लगा तो अब्बा ने अपने पोतों के साथ एक खुफिया मीटिंग की, जिसके बारे में मुझे बहुत बाद में खबर हुई। अचानक मेरे बेटों की मोहब्बत अपनी फूफियों के साथ दिन ब दिन बढ़ने लगी। वो उनके साथ राजदारी से खुसर फुसर करते। मैं या नादिया जाते तो खामोश हो जाते। ये सूरत हाल मुझे और नादिया को हौलाने लगी। सरमद, अपने बेटों को कंट्रोल करो। अगर उन्होंने अपनी किसी फूफीज़ात को पसंद कर लिया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। वो आंसू पोंछती और मैं खामोश रहता और दिल ही दिल में नादिया से कहता कि अगर ऐसा हो गया तो उसे अपनी जान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपाओं की राज दुलारियों ने उसकी जान खुद ही निकाल लेनी थी। मैं और नादिया जल जल कर खाक हो रहे थे और अब्बा का इत्मीनान दीदनी था। मुझे हैरत का शदीद तरीन झटका, बल्कि झटके तब लगना शुरू हुए जब 6 माह बाद बारी बारी तीनों बहनों ने अपनी उन बेटियों की मंगनियां अपनी ससुराल में कर दी जिनके लिए वो मूसा और हारून को दामाद की हैसियत से पसंद कर चुकी थीं। उसके बाद बाकी चारों भी बहाने से सुना गईं कि वो भी अनकरीब अपनी बेटियों की बात अपने ससुराली रिश्तेदारों में पक्की कर देंगी। मैं जो इस मसले को लेकर बहुत परेशान था, इस काया पलट पर हैरान रह गया। अब्बा जी, ये आपाओं को क्या हो गया? हम सब रात को इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे। अम्मा जल्दी सोने की आदी थीं, सो वो अपने कमरे में जा चुकी थीं। तू सारी उम्र लगा रहता तो भी इस मसले को हल नहीं कर सकता था।
اور میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میرے دونوں شیر بالکل مجھ پر گئے ہیں، ان سے پوچھ لینا، میں سونے جا رہا ہوں۔ ابا نے موسیٰ اور ہارون کے کندھوں پر تھپکی دی۔ بابا دونوں نے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دیں۔ اف، بہت ایکٹنگ کرنا پڑی ہم دونوں کو۔ موسیٰ مسکرا رہا تھا، حالانکہ آپ اور امی ہم سے ناراض رہنے لگے تھے کہ کہیں ہم پھوپھیوں کے داماد نہ بن جائیں۔ ہارون ماں کے برابر جا بیٹھا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ نادیہ ابھی تک حیران تھی۔ دادا نے یہ مشن ہم دونوں کے سپرد کیا تھا، سو ہم نے پلان بنایا، جب بھی کوئی پھوپھی یہاں آتی ہم ان سے خوب محبت جتاتے اور ان سے کہتے، پھوپھو آپ اتنی اچھی ہیں، ہمارا بس چلے تو آپ کی بیٹی سے شادی کریں۔ مگر آپ ہماری امی کو تو جانتی ہیں نا، اول تو وہ مانے گی نہیں، اور مان بھی گئیں تو آپ کی بیٹیوں پر ظلم ڈھا کر آپ سے بدلہ لے لیں گی اور آپ تڑپ تڑپ کر ختم ہو جائیں گی۔ اور دادا کو بھی آپ جانتی ہیں، وہ تو شروع سے ہی امی کی سائیڈ لیتے ہیں۔ وہ سر ہلانے لگتی۔ لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ موسیٰ سانس لینے کو رکا تو ہارون شروع ہو گیا۔ ریحانہ اور عالیہ پھوپھو سے ہم نے کہا کہ آپ یقین کریں، ہم نے خود سنا، وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ عالیہ اور ریحانہ کی بیٹیوں سے شادی کروا کر وہ ان کے باپوں سے بدلہ لیں گے جو ان کا ادھار لے کر کھا چکے ہیں۔ میں ابھی ابا سے بات کرتی ہوں۔ میری بات پر ریحانہ پھوپھو اٹھنے لگیں تو موسیٰ نے پکڑ کر بٹھا لیا اور کہنے لگا، کیا کرتی ہیں پھوپھو، آپ نے یہ سب ان سے پوچھا تو پھر وہ ہمارا آپ سے ملنا بند کر دیں گے اور پھر آپ کو اندر کی خبریں ملنا بند ہو جائیں گی۔ ہارون نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اس طرح کی برین واشنگ کر کر کے ہم نے یہ کام کروایا ہے۔ دونوں نے کالر اکڑائے۔ پر بیٹا، وہ میری بہنیں ہیں، تم لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، آخر میں ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ ہم جانتے ہیں بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، لیکن اس مان کے نام پر بھائیوں کی کھال تو نہیں کھینچنی چاہیے نا۔ اپنے حق کا شور مچانے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ موسیٰ اور ہارون نے تسلی دینے کے انداز میں میرے ہاتھ دبائے۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہارون نے لاڈ سے کہا، اور نہ ہی کوئی اب آپ کے کان کھینچ کر لمبے کر سکتا ہے۔ نادیہ نے لقمہ دیا تو سب کا بلند قہقہا پڑا۔ ابا جی ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا پتر اکیلا ہے اور اکیلی تو لکڑی بھی نہیں جلتی، اس لیے میں ہر معاملے میں اپنے پتر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اور اب ابا جی نے میرے ساتھ دینے کے لیے اپنے دونوں پوتوں کو تیار کر دیا تھا۔ مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دادا کے تربیت یافتہ دونوں پوتے میرے دائیں بائیں یوں سہارا بن کر کھڑے تھے کہ مجھے لگا میرا اکلوتا پن ہمیشہ کے لیے کہیں جا چھپا ہے۔ ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک بٹن پریس کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔ شکریہ۔